السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے دوستو، آج پھر میں آپ لوگوں کے سامنے مولانا معروف رضا خان صاحب کا ایک ویڈیو لے کر کے آیا ہوں، جو وہ نوجوانوں کے پاس جاتے ہیں اور ان سے سوال کرتے ہیں۔ چلیے دیکھتے ہیں وہ کون سا سوال کر رہے ہیں۔ آخری سوال اصلاحی سوال کر لیتا ہوں آپ کو، جو نوجوانوں کو ضرورت ہے جس چیز کی، جی بالکل، جو ضروری ہے نوجوانوں کو، خاص کر کے جو نوجوان شادی شدہ ہیں ان کے لیے بڑا اصلاحی سوال ہے یہ، اور بہت ضروری سوال ہے۔ قیامت کے دن سب سے برا آدمی کون سا ہوگا؟ جو اپنی بیوی کی آپ تھوڑا سا کھل گئے، ہاں کوئی بات نہیں ہے، یہ بھی چیز ہے، کھل گئے تھوڑا سا بولنے میں آپ، لیکن اب رات کے 12 بجے تو دکان کھولو گی نہیں، بند کرنے کا ٹائم ہوتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ صبح 10-11 بجے کھولتے ہو وہ دکان۔ اسی طرح سے نماز کی شرطیں ہوتی ہیں، کتنی ہوتی ہیں، کیا کیا ہوتی ہیں؟ صحیح۔ نماز ہم اب نماز پڑھنے لگے، اب شرطیں ہماری مکمل ہو گئیں، اب ہم نماز ادا کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ اس نماز کے اندر کیا کیا فرض ہے یہ معلوم ہونا چاہیے۔ کیوں؟ جو فرض ہوتا ہے وہ اگر چھوٹا تو نماز نہیں ہوگی، میں یہ بھی بتا دوں آپ کو۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں نماز میں اگر مسٹیک ہو جائے تو اس کے لیے ہم سجدہ صاحب کرتے ہیں، لیکن یہ جو فرض چیزیں جو ہیں اگر یہ چھوٹ گئیں تو سجدہ صاحب سے بھی نماز نہیں ہوگی۔ محترم حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نہیں ہوگی۔ اس وقت میں حاضر ہوں اتر پردیش کے بریلی کے بہڑی میں، اور یہاں پر مارکیٹس، دکانیں وغیرہ بنی ہوئی ہیں۔ یہاں پر آج بہت سے لوگ کمنٹس کر رہے تھے کہ معروف بھائی باہر کی ویڈیو بنائیے، جس طرح سے اسلامک سوال جواب کی ویڈیو بنایا کرتا تھا میں، اور بہت سے لوگ کمنٹس کر رہے تھے کہ ویڈیو بنائیے۔ آج جانیں گے بہڑی کے نوجوانوں کے حالات، کہ دین کے کتنا قریب ہیں، دینی نالج کتنی ہے لوگوں کو۔ یہ سامنے دکان ہے، یہاں پر کریں گے اسلامک سوال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ بھائی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بالکل گھبرانے والی بات ہی نہیں ہے یار، اپنا بھائی، بڑا بھائی سمجھیے۔ ویڈیو بننے کے بعد میں آپ پرمیشن دیں گے تب پوسٹ کریں گے ویڈیو، کوئی زبردستی نہیں۔ بھائی ہیرو بھائی میرے عزیز، آؤ ادھر کو، آؤ میرے پاس۔ دیکھیں لائٹ بھی جلا دو، لائٹ جلا لو، اندھیرا آیا۔ اچھا لائٹ نہیں ہے۔ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ نہیں ہے میرا کہ میں آپ کو پریشان کرنے آیا ہوں، آپ کی انسلٹ کرنے کے لیے آیا ہوں۔ وہ تو خود بندے کو ایسا لگتا ہے، تو جو ایسی بھاگ لگاتے ہیں مجھے دیکھ کے کہ پتہ نہیں اچانک پتہ نہیں کیا ہو گیا، کیا ہونے والا ہے۔ ہاں یہ ذریعہ ہے ایک بات کو اپنی پہنچانے کا، ویڈیو بنانا جو ہے ایک ذریعہ ہے۔ تو اسلامک سوال ہی کرتا ہوں میں، آپ کو معلوم ہے، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ بہت جیسے لوگ ہوتے ہیں ان کے حساب سے میں بات چیت کرتا ہوں، ان سے گھبرانے والی کوئی بات نہیں ہے۔ آپ کا نام کیا بھائی؟ فیضان علی۔ فیضان علی، ماشاء اللہ۔ آپ کا نام؟ محمد شمیر، محمد سیف، محمد ایاز۔ ایاز بھائی، ماشاء اللہ۔ فیضان بھائی، اچھا ہمارے نبی کا نام تو یاد ہوگا آپ کو؟ ہمارے نبی کا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ماشاء اللہ، بتا دیا ماشاء اللہ، کوئی گھبرانے والی بات ہے ہی نہیں اس میں۔ ماشاء اللہ۔ کسٹمر ہے، کسٹمر دیکھ لو بیٹا، ماشاء اللہ، اللہ برکت عطا فرمائے۔ کھڑے ہو ذرا، میں کھڑا ہوں تم بیٹھے ہو یار۔ کوئی بات نہیں، نہ احترام والی بات نہیں ہے، میں سمجھو بات کو ذرا تھوڑا سا۔ یہ بتاؤ اذان کتنی مرتبہ ہوتی ہے؟ 5 مرتبہ۔ ماشاء اللہ، بتا دیا نا۔ کون کون سی ہوتی ہے اذان؟ فجر، ظہر، ماشاء عصر، اللہ، مغرب، الحمدللہ۔ ماشاء اللہ۔ اذان یاد ہے آپ کو؟ ماشاء اللہ۔ اذان ویسے بتلا جیسے اپنا اب نہیں، ہاں جیسے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد اللہ، جیسے 2 بار میں بول دے رہا ہوں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول لا الہ اللہ، الا اللہ حی علی محمد الصلاۃ، رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اللہ اکبر، اللہ حی علی اکبر، الصلاۃ، اشہد اللہ الہ حی الا علی اللہ۔ الفلاح، حی علی الفلاح۔ نہیں، محمد رسول اللہ بعد میں نہیں کہا جائے گا، صرف لا الہ الا لا اللہ کہا جائے الہ گا۔ الا اللہ۔ ٹھیک ہے، چلو ماشاء اللہ، اچھی بات ہے۔ اللہ اکبر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ ہیں، اللہ سب سے بڑا۔ ماشاء اللہ۔ اب آپ مجھے یہ بتائیے، آپ ماشاء سب سے اللہ، افضل اللہ سب سے ذکر کیا بڑا ہے؟ ہے۔ ذکر جو بندہ بات کر رہا ہے، کوئی بھی باتیں کر رہے ہیں، بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے ہیں، کسی بھی دین کی بات کر رہے ہیں، دنیاوی بات کر رہے ہیں، کچھ بھی باتیں کر رہے ہیں، بات کا مطلب کسی کا ذکر کر رہے ہیں، تو سب سے افضل ذکر کیا ہے؟ منہ سے جو نکالنا بات، سب سے افضل کیا ہے؟
ये ज़हनी आजमाइश का सवाल है। हाँ, सबसे अफजल जिक्र, दुनिया का सबसे अफजल जिक्र, मुंह से जबान से कुछ निकलेगा तो वो क्या निकलेगा ऐसा? किसका जिक्र, किसका? सबसे पहले हमारे अल्लाह ताला और अल्लाह का और हमारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का। सबसे अफजल जिक्र किस तरह से, क्या बोलना? जैसे सपोज करो कलमा पढ़ रहे हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, या अल्लाह की तारीफ में अल्लाहु अकबर, मतलब अल्लाह सबसे बड़ा है। माशाल्लाह सर, हाँ सही है। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये है सबसे अफजल जिक्र। माशाअल्लाह। ज्यादा से ज्यादा मुंह से अगर खाली बैठे हुए ना यही पढ़ते रहे, अल्लाह यदि बरकतें करेगा उम्र में और रोजगार में, माशाअल्लाह। अगर इतना भी पढ़ते रहे कि ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, इतना भी पढ़ते रहे अगर। अच्छा, सबसे अफजल जिक्र तो हो गया ला इलाहा इल्लल्लाह, सबसे अफजल दुआ कौन सी है? बिल्कुल दुआ, सही बात है। वो भी थोड़ा सा ये हिंट दे दिया मैंने, जैसे ये थोड़ा सा ला इलाहा इल्लल्लाह, वो थोड़ा सा ये ऐसे ही है वो भी। आयतुल कुर्सी। मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, जैसे कहा हमने ला इलाहा इल्लल्लाह, इसी तरह से ला इलाहा इल्लल्लाह कलिमात है सुब्हानक छोटा इन्नी सा, कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। तो वो सबसे अफजल दुआ है। दुआ अच्छा, हम आए दुकान में आपके, हमने पूछा क्या हाल है फैजान भाई, क्या कहोगे मेरे आप? हिसाब से ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ माशाअल्लाह, ज़ालिमीन। अल्हम्दुलिल्लाह। तो यही है। सबसे अफजल जिक्र दुआ जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह है। अल्हम्दुलिल्लाह ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह का क्या मतलब होता है? अल्हम्दुलिल्लाह, तेरा शुक्र है, ये भी है। अल्लाह तेरा शुक्र है। हाँ, शुक्र करना चाहिए अल्लाह का, अल्लाह तेरा शुक्र है, सही है। हाँ कहोगे, हाँ अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फजल है, ये भी कह दोगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह का मायना ये नहीं है अल्लाह का शुक्र है। हाँ, ये मायना नहीं है, मायना तर्जुमा जो है वो कुछ और है। क्या है वो, गौर करिए ज़रा। चलो नहीं है पता, गौर क्या करोगे? नहीं है पता, नहीं मालूम है ना, ऐसा जितना भी है, वैसे तो अनपढ़ ही मानो, जितना भी है सुन के है ना। काम दोस्तों, की आप जो लोग बातें वो कमेंट सब में बता रहे हैं आप, बताइएगा जरूर। माशाल्लाह, बिल्कुल माशाल्लाह, बहुत खुशी की बात है। मैं नहीं सीखा है, वैसे कोई वो नहीं है तो कोई हमारा कोई गुरु हो, हम ये मान लो खुतबे में उस्ताद कहते हैं, गुरु नहीं कहते हैं। ना, हाँ उस्ताद है इनकी। चलो चलो कोई बात नहीं, वो ज़बान है एक, गुरु और वो उस्ताद को एक ही बात है। तो मैं बता देता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह का मतलब होता है सब तारीफ़ अल्लाह के लिए, सब तारीफें अल्लाह के लिए। सब तारीफ़ अल्लाह के लिए। आगे है बात अल्लाह पे ही सब आती तारीफ है। अल्लाह की है। तो किसी ने कहा क्या हाल चाल है भाई साहब? अल्हम्दुलिल्लाह, बस सब तारीफ़ अल्लाह के लिए, सब बेशक। सब तारीफ़। अल्हम्दुलिल्लाह का मतलब यही होता है। अच्छा, नमाज जो पढ़ता है बंदा, तो उसकी कुछ शर्तें होती हैं। कोई भी काम करेगा उसकी शर्त होगी। एक आप दुकान खोलेंगे तो उसकी शर्त यह है कि पहले साफ़ सफाई कर ली जाए दुकान की, काउंटर पे कपड़ा वपड़ा मार लिया जाए, ऐसी तो बैठोगे नहीं आके। इसी तरह से नमाज पढ़ने के लिए भी शर्त हैं। अब रात के 12 बजे तो दुकान खोलोगे नहीं, बंद करने का टाइम होता है। शर्त यह है कि सुबह 10-11 बजे खोलते हो वो दुकान। इसी तरह से नमाज की शर्तें होती हैं। कितनी होती हैं, क्या क्या होती हैं? आइए भाई साहब, आइए, आमिर भाई एक बड़े अच्छे लग रहे हो माशाल्लाह। मिनट आ जाओ, एक मिनट। ऐसे भागोगे यार, ऐसे भागोगे, अरे आ जाओ आमिर, आ जाओ, गलत बात है। मैं बताने आया हूँ, आ जाओ। मैं कोई बात नहीं, अरे दुकान अल्लाह के हवाले छोड़ दो थोड़ी देर के लिए। मैं हूँ खड़ा हुआ यहाँ पे, मैं तुमसे कुछ बात कर लूँ ज़रा। नमाज में कितनी शर्तें होती हैं? नमाज पढ़ने के लिए क्या शर्त है? कोई एक शर्त तो बताओ यार। नेकर पहन के नमाज पढ़ लोगे क्या? नमाज में शर्त पहले पाक होना ज़रूरी है। माशाल्लाह, ये आई नहीं बात, है ना। पहले गुस्ल होना ज़रूरी है, माशाअल्लाह। ठीक, फिर उसका वज़ू, हाँ हाँ, चलो। फिर वज़ू, फिर उसकी फिर नियत, फिर नमाज। नमाज में पाक होना ज़रूरी है, और वज़ू होना ज़रूरी है, और कपड़े पाक साफ़ होना ज़रूरी है, और दिल बिल्कुल पाक साफ़ हो हमारा, बिल्कुल साफ़ सुथरे मन से नमाज पढ़नी जगह चाहिए। का पाक होना चाहिए। चलो, कुछ बातें आप ठीक ही बता रहे हैं माशाल्लाह, ठीक है। लेकिन नमाज की जो शर्तें होती हैं वो 6 होती हैं। कुछ लोग 7 भी कह देते हैं। 7वीं जो होती है वो तकबीर तहरीमा बोलते हैं, वो उसको शर्त भी कह देते हैं। कोई बात नहीं, शर्त भी कह सकते हैं। और वैसे वो जी, बेशक। नमाज के फ़र्ज़ में आती है। जो तकबीर तहरीमा जो कानों तक हाथ उठाते हैं वो नमाज का फ़र्ज़ है। हाँ, तो जो नमाज की शर्तें हैं वो 6 हैं। सबसे पहले तहारत, जो आपने बताया अभी, पाकी। नियत, यानी किस वक्त की हम नमाज अदा कर रहे हैं उसको कहते हैं नियत। बेशक। सतर औरत, यानी सारे जिस्म का सतर ये ढका हुआ होना, सतर हमारा ढका हुआ होना। इस्तकबाल किबला, यानी कि हमारा रुख काबे की तरफ, काबे की नंबर तरफ 3। होना। और जगह का पाक होना, कपड़ों का पाक होना, ये शर्तें, अच्छा। 6 शर्तें हैं। आखिरी सवाल कर लेता हूँ, नमाज के ताल्लुक से है ये भी। नमाज के अब फ़राइज़ कितने हैं? शर्तें तो हो गई 6। नमाज में
जो नमाज पढ़ते हैं हम, अब नमाज पढ़ने लगे, अब शर्तें हमारी मुकम्मल हो गई, अब हम नमाज अदा करने के लिए खड़े हो गए। इस नमाज के अंदर क्या क्या फ़र्ज़ है ये मालूम होना चाहिए। क्यों? जो फ़र्ज़ होता है वो अगर छूटा तो नमाज नहीं होगी। मैं ये भी बता दूँ आपको, नमाज पढ़ने हम खड़े हो गए, अब जो चीज़ें मैं फ़र्ज़ बता रहा हूँ आपको आज, ये ध्यान रखना, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं नमाज में अगर मिस्टेक हो जाए तो उसके लिए हम सजदा साहब करते हैं, लेकिन ये जो फ़र्ज़ चीज़ें जो हैं अगर ये छूट गई तो सजदा साहब से भी नमाज बिल्कुल नहीं होगी। इसलिए फ़र्ज़ कहा गया। नमाज में कितने फ़राइज़ हैं मैं बता दूं, 7 फ़राइज़ हैं। अब ये बताओ क्या क्या हो सकते हैं। चलो गौर करो, आराम से सोचो ज़रा, नमाज में कितने 7 बता दिए मैंने, कुछ लोग 7 भी कहते हैं, जैसे मैंने बताया था 7वां जो तकबीर दोस्तों तहरीम, आप लोग बाकी कमेंट 6 में बचे। बताइए कि नमाज में कितने फ़राइज़ है और क्या क्या फ़राइज़ है। चलो मैं मैंने कहा था बताने आया हूँ मैं तो आपसे पूछ रहा था, वैसे नहीं मालूम है आपको, तो आज पता लग जाएगा इंशाल्लाह। वीडियो के जरिए लोग दूसरे लोगों तक भी पहुंच जाएगा। नाराज़ होने वाली कोई बात ही नहीं है, शर्म वाली है ना, कोई ऐसी बात नहीं है। कलमा पढ़िए आप। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। माशाल्लाह, हमारे नबी का क्या नाम है? माशाल्लाह। अब आप बिल्कुल साफ हो गए, अब इसमें आपकी बेइज्जती नहीं है। क्यों? ये ज़रूरी है। अगर ये भी पता नहीं है एक मुसलमान को तो फिर उसको शर्म से छुपा ले मुँह अपना। वो मैं बता देता हूँ। तकबीर तहरीमा, माशाअल्लाह, क़याम, माशाअल्लाह, क़िरात, रुकू, सुजूद, कायदा अखीरा, खुरूज बसुनियाई, सलाम फेरना, तशहुद में बैठना फ़र्ज़ है, रुकू करना, सजदा करना, ये सब फ़र्ज़ हैं। क़िरात करना, अलहम्दु शरीफ पढ़ना, ये फ़र्ज़ है। नमाज के अंदर अलहम्दु का पढ़ना फ़र्ज़ है। ये चीज़ें अगर छूटी तो नमाज नहीं होगी। सजदा साहब नहीं कर लेते हैं, कुछ चीज़ें कुछ पढ़ने में मिस्टेक ऐसी हो जाती है तो सजदा साहब कर लिया जाता है, लेकिन जो फ़राइज़ हैं, ये मेरी वीडियो बहुत लोग देखते हैं, बड़े बड़े उलमा देखते हैं, और मैं अगर कहीं गलत बोल रहा हूँ तो कमेंट्स के ज़रिए भी आप मेरी इस्लाह कर सकते हैं। ये ज़रूरी है। तो ये जो है ना, फ़र्ज़ अगर छूटा, नमाज का एक भी फ़र्ज़ छूटा तो नमाज मुकम्मल नहीं होगी। कुछ और छूट जाता है पढ़ने में, वैसा थोड़ा सा मिस्टेक हो जाए आगे पीछे तो सजदा साहब से नमाज हो जाती है, लेकिन फ़र्ज़ छूटा तो नमाज नहीं होगी। आयतुल कुर्सी अगर मान वो बिल्कुल सही बात है। अत्तहियात अगर गलत हो जाती है तो अब उसमें ये है कि आपको फिर से अत्तहियात पूरी मुकम्मल करना पड़ेगी, क्योंकि वो बिल्कुल भी गलत होती है, उससे नमाज नहीं मानी जाती है। अगर अत्तहियात अपना पढ़ लें उसमें मिस्टेक, अत्तहियात के बाद अगर दुरूद शरीफ पढ़ लिया, याद आ गया तो ऊपर उठ सकते हो, नहीं याद आएगा तो सजदा साहब करना पड़ेगा। हाँ समझा नहीं मैं कैसे कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि अत्तहियात अगर मान लो गलत हो जाती है तो शायद मैंने सुना जैसे अगर पढ़ने में मिस्टेक हो, अत्तहियात हम बैठे हुए हैं, अत्तहियात पढ़ रहे हैं और हमें उठना है, अब दुरूद शरीफ पढ़ लिया, अल्लाहुम्मा सल्ली अला के बाद पूरा पढ़ लिया, याद आ गया तो नहीं करना पड़ेगा, और याद आ गया तो उसके बाद सजदा साहब करना पड़ेगा। यानी 4 रकात पढ़ रहे हैं और दूसरी में हमने अगर दुरूद शरीफ पढ़ ली, दुरूद इब्राहिमी दोनों पढ़ ली, हाँ, तो इसमें सजदा साहब कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं इस जगह पे। याद आने अगर याद, हाँ सजदा, अब डाउट हो गया अगर कि हमारी गड़बड़ी होगी नमाज तो सजदा साहब कर लें, नमाज हो जाएगी, लेकिन अगर फ़र्ज़ छूटा तो नमाज नहीं होगी। तो और कुछ पूछूं मैं? आखिरी सवाल, इस्लाही सवाल कर लेता हूँ आपको, जो नौजवानों को ज़रूरत है जिस चीज़ की, जी बिल्कुल, जो ज़रूरी है नौजवानों को, ख़ास करके जो नौजवान शादीशुदा हैं उनके लिए बड़ा इस्लाही सवाल है ये, और बहुत ज़रूरी सवाल है। बिल्कुल। क़यामत के दिन सबसे बुरा आदमी कौन सा होगा? जो अपनी बीवी की हमबिस्तरी के बारे में कुछ बताता है। आप थोड़ा सा खुल गए, हाँ कोई बात नहीं है, ये भी चीज़ है, खुल गए थोड़ा सा बोलने में आप, लेकिन हाँ यही बात है, जो बीवी के राज बताने वाला। हाँ वो मैंने, पर फिर भी मैंने अंदर वैसे ही बोल दिया आपने बात को, यानी नौजवान यार दोस्तों में खुल के बयान करते हैं। हाँ, समझदार को इशारा काफ़ी, समझ गया माशाल्लाह। माशाल्लाह, ऐसे देख के ही सीखते हैं, जो भी है कुछ भी है। माशाल्लाह, अच्छी बात है, जज्बा होना चाहिए सीखने का। माशाल्लाह, अल्लाह पाक आपके इल्म व अमल में, उम्र में खूब बरकत अता फरमाए, अल्लाह पाक आपके कारोबार में खूब बरकत अता फरमाए, और अल्लाह पाक सलामत रखे। किस चीज़ की? बैग की दुकान है माशाल्लाह। आइए भाई। डॉक्टर हैदर के बराबर में माशाअल्लाह। आप बता दीजिए। बहड़ी में डॉक्टर हैदर के बराबर, आमीन आमीन। डॉक्टर हैदर के बराबर में अली बैग हाउस बहड़ी में। आइए आप लोग विजिट करिए एक बार, भाई से अगर आपको ज़रूरत है किसी चीज़ की तो खरीद सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो दोस्तों आप लोगों ने ये वीडियो देख लिया, इसमें मौलाना मारूफ रज़ा ख़ान साहब नौजवानों से इंटरव्यू ले रहे थे। वो पूछ रहे थे, बहुत सारे सवालात पूछे, और ख़ास तौर पर हम जैसे नौजवान जो नमाज के बारे में नहीं जानते हैं, उनको सीखना बहुत ज़रूरी है।